हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो विल डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड स्टाइल ऑफ Sylvia Plath's poem Ariel and Daddy, and this is very important question from MEG 18 means American poetry. So let's do this question. Discuss the structure and style of the poems Ariel and Daddy. Now to understand this answer, you need to know the meaning of structure style. Okay. So structure means how a poem is organized. पोम को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है, मतलब उसके स्टेंजास कैसे हैं, लाइंस कैसे हैं, राइम स्कीम कैसे हैं, तो इसको हम पोम का स्ट्रक्चर बोलते हैं. देन वी हैव स्टाइल. स्टाइल मीन्स पोएट्स वे ऑफ राइटिंग. पोएट ने पोम को किस तरीके से लिखा है, मीन्स कैसे लैंग्वेज को यूज़ किया है, राइम्स को कैसे यूज़ किया है, फिर उसमें रिपीटेशन है या नहीं, साउंड इफ़ेक्ट्स कैसा है, पोएटिक डिवाइस कैसे यूज़ किए हैं, तो ये सारी चीज़ों को हम स्टाइल कहते हैं. तो अब यही दो चीज़ को हम दोनों पोम में एनालाइज करेंगे, स्ट्रक्चर एंड स्टाइल. सो बोथ एरियल एंड डैडी आर फेमस एग्जाम्पल्स ऑफ कन्फेशनल पोइट्री. ओके, वेयर the poet expresses very personal emotions and experiences. कन्फेस करता है पोएट. दोनों ही जो पोम है एरियल और डैडी क्या है, कन्फेशनल पोइट्री. सो विल स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर, मीन्स अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एरियल. सो हियर यू नीड टू रिमेंबर दैट एरियल इज रिटन मेनली इन 3 line stanzas. ठीक है, इसका जो मेन फीचर है क्या है, वो 3 lines के स्टेंजा हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, टासेट्स. Okay, so these short stanza make the poem move quickly from one image to another. This is the quality of this small stanza. Okay, then the poem describes a horse ride. So the structure creates a feeling of movement and speed. In this poem, you will find the combination of two opposite ideas like motion and stillness. दोनों ही opposite word है, motion और stillness. So sometimes the poem feels very fast like a horse running, and sometimes it feels calm and still, calm and stable. So this mixture makes the poem exciting and powerful. And if we'll talk about sound effects in Ariel, so Plath uses many sound devices like internal rhyme. Some words rhymes inside the line itself. Okay. Then he also used half rhyme. मीन्स सम वर्ड्स साउंड सिमिलर बट डू नॉट राइम परफेक्टली, तो हम इसको हाफ राइम कहते हैं. इससे क्या होता है, जो पोम है वो स्लाइटली ब्रोकन लगता है, फ्रेगमेंटेड फीलिंग आता है इसमें जब हम हाफ राइम को यूज़ करते हैं. और जो ये राइम्स हैं वो एक स्टेंजा को दूसरे स्टेंजा से कनेक्ट कर रहे हैं. ओके, राइम्स कनेक्ट वन स्टेंजा टू अनदर, एंड एज अ रिजल्ट द पोम फील्स लाइक वन कंटिन्यूस जर्नी. ऐसा ब्रेक नहीं फील होता है, बल्कि कंटिन्यूस जर्नी फील होता है rather than separate parts. Then one of the most important techniques is the play on the words. जो एकदम important technique यहाँ पर यूज़ किया गया है वो है play on the words. जैसे 2 word हैं I, E-Y-E and I. So first I means A-E-Y-E means seeing, and I means the speaker herself. So by connecting these 2 words, Plath shows that the speaker is changing and transforming. Then at the end of the poem, the speaker moves towards death and rebirth. So this transformation is shown through the rhyme between I and cry. Now let's talk about vowel sounds and verbs in Ariel. So here Plath uses both slow and fast sounds. Long vowel sounds like lioness, माउथफुल, अनपील. तो लॉन्ग वॉल साउंड का क्यों यूज़ होता है, ताकि जो रीडिंग है वो फ्लो हो सके आराम से, मतलब वो फ्लो बना रहे. सो दे क्रिएट अ फीलिंग ऑफ स्टिलनेस, लॉन्ग वॉल्स. देन वी हैव एक्शन वर्ब्स लाइक स्प्लिट्स, पासेस, हॉल्स, फ्लाइज. अब ये सारे वर्ड्स क्या क्रिएट करते हैं, स्पीड और मूवमेंट. सो फ्रेंड्स, द पोम बैलेंसेस both the things, stillness and speed at the same time, and this balance matches the experience of riding a horse. Now let's move to Daddy. अब हम Daddy के structure और style के बारे में बात करेंगे. So Daddy is different from Ariel. The main feature of this poem is the repetition. ठीक है, so Plath repeats words, repeats sounds again and again. तो repetition से क्या होता है, poem sounds like chant.
a spell, even nursery rhyme. So in this poem, the speaker is actually trying to free herself from the memory of her father. Therefore, the chanting style becomes very effective. Now let's talk about rhyme pattern in Daddy. So one special feature is the repeated oo sound. Okay, examples you, do, shu, ju, glue. तो ये साउंड जो है ना पूरे पोम में आपको सुनाई देगा. एक तरीके का हिप्नोटिक इफेक्ट क्रिएट करता है ये जो रिपीटेड साउंड्स होते हैं. तो प्लाथ यहाँ पर कुछ सर्टेन वर्ड्स हैं उसे कई बार रिपीट किए हैं, जैसे कि ब्रूट. ब्रूट मतलब होता है क्रूअल. देन बैक. तो उन्होंने ऐसा क्यों किया है? बिकॉज रिपीटेशन शोज स्ट्रॉन्ग इमोशंस. इट शोज द स्पीकर्स एंगर, पेन एंड ऑब्सेशन. सो दिस पोम साउंड्स लाइक चाइल्ड स्पीच, क्योंकि इसमें बहुत सारे रिपीटेशन है तो स्पीच जैसा लगता है बच्चे का, बट एक्चुअली इट एक्सप्रेसेस वेरी सीरियस एडल्ट इमोशंस एंड दिस कॉम्बिनेशन मेक्स द पोम यूनिक. देन अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस पोम इज मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेस. यहाँ पे लैंग्वेज को मिक्स किया गया है, जैसे कि इंग्लिश और जर्मन के वर्ड्स को मिक्स किया गया है. फॉर एग्जाम्पल इक, ICH, एक, ये जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है आई. So here speaker struggles to speak. This shows her confusion and broken identity. तो ऐसे broken language को यूज करके क्या होता है कि स्पीकर जो है ना अपना broken self को रिफ्लेक्ट कर पाता है. So through language, Plath shows emotional suffering. Okay, now let's talk about stylistic devices like caricature, hyperbole and parody. So both the poem Ariel and Daddy use these important stylistic devices. Like hyperbole means exaggeration. For example, the speaker says she lived in her father's black shoe for 30 years. तो ये literally true नहीं है. It is an exaggerated way of expressing her feelings. Then caricature means making someone look exaggerated. Like in Daddy, the father is presented as a giant, a vampire and a monster. Then parody मीन्स मॉकिंग एंड इमिटेटिंग समथिंग, किसी चीज़ को कॉपी करना. तो प्लाथ ने पैरोडी का यूज़ इसलिए किया ताकि वो किसी आइडिया को क्रिटिसाइज़ कर सके, लोगों को क्रिटिसाइज़ कर सके, यहाँ तक कि खुद को. सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल इन दिस आंसर. नाउ लेट्स कंक्लूड. सो एरियल इज़ अ पोम ऑफ मूवमेंट, speed and transformation as well as rebirth, and its structure and sound creates the feeling of a fast horse ride. Whereas Daddy is a poem of anger, pain and liberation. Its repetition, rhyme and chant-like style creates a powerful emotional effect. So both poems shows Plath's extraordinary skill in using language, rhyme, then repetition and sound to express डीप इमोशंस. इसीलिए एरियल और डैडी जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोम माना जाता है मॉडर्न अमेरिकन पोइट्री में. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही. आपको अगर और भी कुछ वीडियोस चाहिए मतलब दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए, तो आप प्लेलिस्ट चेक करिए. कई सारे सब्जेक्ट्स पर वीडियोस हैं. MEG 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, देन 11, 14, 15, MEG 18 पर भी थोड़ा बहुत काम चल रहा है. आप मैराथन वीडियोस को ज्वाइन कर सकते हैं. 1 से 2 घंटे के वीडियोस हैं जहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया एक्सप्लेनेशन के साथ. तो उसके लिए आपको चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा लेवल 3 पर. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें. चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए. अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए, कॉमेंट करिए. तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए. बाय.